हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। आज हम सीखने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। सो वन बाय वन हम डेफिनेशन देखेंगे। Definition of an increasing function: a function f is said to be monotonically or strictly increasing function on an interval ab if for any x1 and x2 belongs to the interval ab with the condition x1 is less than x2, then we should have the function f of x1 strictly less than f of x2। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहेंगे तो सपोज हमारा x एंड x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, इसमें हम फंक्शन ड्रॉ करते हैं। दैट फंक्शन सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विल बी एनी फंक्शन, ठीक है। इसमें हमें इंटरवल दिया है, दैट इंटरवल इज ए बी। सपोज दिस इज a and this will be b. In this interval what is given to us, x1 and x2 belongs to that interval. So suppose x1 value will be here, it should be in the interval, and x2 value should also belongs to that interval. So x1 and x2 in between the interval. So obviously the function value will be f of x1 and f of x2. Now from if we observe this curve, this is an increasing curve. If we move from left to right, then along the curve y equal to f of x in the interval ab, what we get, the curve will be rising curve. Okay, ये curve कैसे हो रही है, rise हो रही है। So हम नेक्स्ट लाइन पे समझते हैं। सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने कोई भी फंक्शन लिया, इस फंक्शन के लिए इंटरवल सपोज किया, दैट इंटरवल विल बी ए बी इंटरवल। सपोज यहाँ पे h इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट, h विल बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, ऑब्वियसली इट शुड बी ग्रेटर देन 0, देन we can write it as x plus h is greater than x. Obviously h is a small increment, so x से greater ही x plus h होगा for any value x belongs to the interval a b. ओके, अगर हम फंक्शन में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस एच विच इज ग्रेटर देन f ऑफ x। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें f of x from both side, what we get, right side we get 0. okay, h small increment है, so divide करो, f of x plus h minus f of x divided by h which is also greater than 0. If our limit h tends to 0, h approaches to 0, what we get, apply the limit h tends to 0. Here what we get, f of x plus h minus f of x divided by h, and this is nothing but what, greater than 0, but the limit approaches h tends to 0, f of x plus h minus function f of x divided by h, it is nothing but what, it is the derivative of a function f dash of x. That means if we get the derivative of a function greater than 0, what we get, the slope of a tangent will be positive, right? So this is what the function is, increasing function. If we get the derivative of a function greater than 0, then the obviously function will be increasing function. In short, we get the slope of a tangent is positive. What we get, slope is positive slope. I hope you understand if what is exactly the increasing function. Same way decreasing exactly इसके opposite होगा, जैसे कि हमने previous इसमें देखा increasing function में, if we move from left to right, the function is rising function. Okay, अभी decreasing function के लिए इसके opposite होगा. Let's see what is decreasing function. A function f is said to be monotonically or strictly decreasing function on an interval ab if obviously again x1 x2 belongs to the same interval ab. With this condition x1 less than x2, then we get exactly opposite to the increasing function. क्या मिलेगा हमें, f of x1 is greater than f of x2, और increasing में क्या मिला था, f of x2 is greater than f of x1. okay, now draw करते हैं function को हम वापस। Suppose this is your function y equal to f of x. Now
Now if we move geometrically from left to right अगर हम move होते हैं curve के along, then what we observe, the curve will be falling down. Okay, चलो interval ले लेते हैं. That interval will be obviously A and B interval. x1 x2 कहाँ पे, x1 x2 also belongs to the interval. So x1 and x2, this is your x1 x2 into the interval. So obviously the function value f of x1 and f of x2. अभी हम ऑब्जर्व करेंगे फंक्शन वैल्यू को, तो हमें फंक्शन वैल्यू कैसी मिलती है, f of x2 ये वैल्यू हमें लेस मिल रही है. ठीक है, f of x2 इज लेस देन f of x1. f of x1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ग्रेटर देन मिल रही है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन. अभी इसको हम समझते हैं. सपोज h विल बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, राइट. सो x प्लस h इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन x, ये तो आएगा फॉर एनी x बिलोंग्स टू द इंटरवल a b. बट इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज f ऑफ x प्लस h लेस देन मिलता है फंक्शन से f ऑफ x से. ठीक है, अभी समझाया. f ऑफ x2 हमें क्या मिला, लेस मिला f ऑफ x1 के. ठीक है, with the condition x1 is less than x2, but हमें opposite मिलता है. So f of x plus h should be less than f of x. Same हम subtract करेंगे f of x plus h minus f of x less than, क्या मिला हमें, 0 मिला. So f of x plus h minus f of x, divide करो h से, h is a small increment both sides, so we will get less than 0. Apply the limit as h approaches to 0. Again what we get, f of x plus h minus f of x divided by h, and this is nothing but what, again we get the derivative of a function. So f dash of x is less than 0. Okay, it means what, the slope of a tangent will be negative. So f dash of x is less than 0. That means slope, what we get, that slope will be negative slope. It means what, the function is decreasing function. The function is decreasing function. तो in short हमें क्या करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, कि डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का. अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आया या फिर नेगेटिव आया, स्लोप नेगेटिव आया, तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. एंड इफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 और द स्लोप इफ वी गेट इट इज पॉजिटिव, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. I hope you understand what is exactly the increasing function and decreasing function. अभी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.4. टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फंक्शन दिया है हमें f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू द रियल नंबर. अभी हमें चेक करना है ये दिया हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अगर इंक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा. अगर डिक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा. तो एनी हाउ हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा. सो सॉल्व करते प्रॉब्लम को. डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 6 इंटू 2 12x प्लस 12x का डेरिवेटिव हमें कांस्टेंट 12 मिलेगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 16 इज ए कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. चलो अब इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं. 3 इंटू इन ब्रैकेट रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ओके, इक्वल टू हमें क्या मिलता है, इसको डिवाइड करते फैक्टराइज कर देते हैं. 3 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, अभी अगर हम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑब्जर्व करें तो फंक्शन क्या मिला है, हमें पॉजिटिव मिला है, राइट. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मिला है. इसका मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर. सो डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन for all values of x belongs to. I hope you understand. So this is first problem. Solve करते हैं next question. Again test whether the following function is increasing or decreasing.
फंक्शन दिया है 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो एनी हाउ हमें अगेन डेरिवेटिव तो निकालना ही है, सो फाइंड आउट करो एफ डैश ऑफ एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0, वो मैं लिखती नहीं। माइनस 3x है, माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x क्यूब। नेक्स्ट लाइन पे हम माइनस 3 इसमें से कॉमन लेते हैं, माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में रह जाएगा, चलो माइनस बाहर गया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 में से आधा माइनस गया तो माइनस ऑफ 2x, यहाँ पे माइनस बाहर प्लस 1, ओके, सो इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर मिलता है। अब भी हम डेरिवेटिव अगर ऑब्जर्व करेंगे तो डेरिवेटिव हमें क्या मिला, निगेटिव मिला है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, एफ डैश ऑफ एक्स वी गेट लेस देन 0, ओके, सो द फंक्शन इज, दैट मीन्स माइनस 3x माइनस 1 स्क्वायर, यह वैल्यू हमें निगेटिव मिली, लेस देन 0 मिली, देयरफॉर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू। So this was the second problem. चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत आसान है, यू कैन ट्राई इट, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है तो सबसे पहले डेरिवेटिव तो निकालना ही है। सो लेट्स फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमें, x माइनस 1 बाय एक्स, ओके, सो डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस माइनस बिकम प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कहाँ पे भी हमें फंक्शन की वैल्यू निगेटिव नहीं है, इट मीन्स व्हाट, द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। Observe this function for all values of x belongs to the set of real number obviously, and the condition is x should not be equal to 0, okay, so the function क्या मिला हमें, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला। अगर ग्रेटर देन 0 मिलता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, सो दिस वाज द प्रॉब्लम। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब तक हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव फाइंड करके कैसे निकालना है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके, हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, दैट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया है हमें एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑलरेडी उन्होंने हमें बताया कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, ओके, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 12 इंटू 2 24x प्लस 36x का डेरिवेटिव आएगा 36 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन what we get 3 into x plus 2 into x plus 6, after factorization 3 into x plus 2 into x plus 6. So if we observe this, what is given to us, f dash of x is greater than 0, it means what, derivative this factor should be greater than 0 because function क्या दिया है हमें, increasing function दिया है। So this is given to us, f dash of x is greater than 0, therefore हम लिख सकते हैं 3 into x plus 2 into x plus 6 also greater than 0, ओके। अभी ये जो ब्रैकेट है, सपोज इसको a सपोज कीजिए एंड इसको b मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, a b दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ओके, तो ये दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो a इंटू बी भी पॉजिटिव होगा, ओके, सिंस ab is greater than 0, when it will be possible that a is greater than 0 and b is greater than 0, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ab will be positive, ओके।
और दूसरी कंडीशन भी ऐसे हो सकती है कि ए अगर निगेटिव होगा और बी भी निगेटिव होगा, अगर दोनों निगेटिव का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वो क्या मिलेगा हमें, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो ये दोनों केसेस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके, सो फॉर दिस 3 into x plus 2 into x plus 6 which is greater than 0, हम केस फर्स्ट कंसिडर करते हैं। केस फर्स्ट में हम लेते हैं x plus 2 greater than 0 and x plus 6 also greater than 0। ओके, तो हमें क्या मिलता है, x is greater than -2 and x is greater than -6 also। ओके, तो इसमें से हम कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे, अगर नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सपोज यहाँ पे 0 है, -2 -3 -4 अप टू -6, तो इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, -2। सो व्हाट शुड वी हैव टू सिलेक्ट हियर, x शुड बी ग्रेटर देन -2। ओके, सो x शुड बी ग्रेटर देन -2 यहाँ पे जाएगा। और सेकेंड केस अभी हम कंसिडर करेंगे, केस नंबर 2। सेकेंड केस में हमें क्या कंसिडर करना है कि सपोज दोनों भी लेस देन 0 निगेटिव है, x plus 2 इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड x plus 6 ऑल्सो लेस देन 0। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओके, x लेस देन आएगा -2 एंड x लेस देन आएगा -6। इसमें से हम कौन सा लेंगे, अभी निगेटिव चाहिए, लेस देन चाहिए x। अगेन नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -6 है, तो वी नीड x लेस देन -6 और x लेस देन -2। तो सबसे स्मॉल कौन सा है, -6। सो दिस वे, ओके, वी हैव टू सिलेक्ट हियर x शुड बी लेस देन -6। सो द फंक्शन f of x, फंक्शन क्या था हमारा, f of x इज इक्वल टू x³ प्लस 12x² प्लस 36x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें ऑलरेडी इंक्रीजिंग दिया है, बट अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ एंड ओनली इफ व्हेन इट इज पॉसिबल x इज लेस देन -6 और x इज ग्रेटर देन -2। इसका मतलब क्या मिला हमें, इंटरवल कैसे मिला, x इज लेस देन -6 टू निगेटिव इंफिनिटी। ओके, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाई है। सो x शुड बी बिलोंग्स टू -∞ टू -6 or x belongs to -2 to positive infinity। Okay, that is x is greater than this, -2 to infinity। So this was the problem, we get x belongs to this interval -∞ to -6 or x belongs to -2 to infinity। That means this function will be increasing function in this interval। I hope you understand this problem, how to find out the value of x। सेम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट हियर द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ऑलरेडी फंक्शन हमें बताया गया है डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 2 ये हमें फंक्शन दिया है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब हमें दिया है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज लेस देन 0। ओके, तो हमें ये पता है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन 3 into 2 6x² माइनस 18x प्लस 12 प्लस कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 आएगा। यहाँ पे 6 कॉमन लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, x² माइनस 3x प्लस 2 ओके इक्वल टू 6 into after factorization what we get, x minus 1 and x minus 2। So this is what we get the derivative of a function। But already ये function क्या बताया है, derivative of that function is less than 0। क्यों, क्योंकि decreasing function है। So हमें क्या लेना पड़ेगा, again derivative this f dash of x is less than 0। अभी अगेन हमारे वही केसेस हम कंसिडर करेंगे। सपोज हम इसको, इस ब्रैकेट को a लेते हैं, इसको b लेते हैं। व्हेन a b लेस देन 0 ये कंसिडर करने के लिए हमें a की वैल्यू एक तो लेस देन 0 चाहिए, ठीक है, b ग्रेटर देन 0 हुआ तो भी हम प्रोडक्ट लेके लेस देन 0 कर सकते हैं। और a ग्रेटर देन 0 केसेस क्या होगी नेक्स्ट, और a ग्रेटर देन 0 होगा या फिर b लेस देन 0 होगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है और इसका प्रोडक्ट हमने लिया तो ऑब्वियसली निगेटिव आएगा। ये निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव लेस देन 0। ओके, उनका प्रोडक्ट लिया तो, और इसके अपोजिट हमने एक पॉजिटिव लिया और एक निगेटिव लिया, तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट लेस देन 0 मिला। ओके, तो कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, x minus 1 less than 0 and x minus 2 greater than 0। ओके, तो हमें क्या मिलता है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद x is less than 1 and x is greater than 2। अभी अगर हम ये इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वेरिएबल x एट अ टाइम लेस देन 1 भी मिल रहा है। यहाँ पे आपका सपोज 1 है और 2 है और इन बिटवीन फंक्शन वेरिएबल x है आपका, तो x इज लेस देन 1 मतलब x शुड बी हियर एंड x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x शुड बी हियर। एट अ टाइम हमें दोनों केसेस नहीं मिल सकते, सो जो फर्स्ट वाली जो केस है इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो फर्स्ट वाली केस हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो केस नंबर 2 में आते हैं। सेकेंड केस क्या हम करेंगे, केस नंबर 2 के x minus 1 greater than 0 and x minus 2 less than 0। ये कंसिडर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x is greater than 1 and x is less than 2। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज नंबर लाइन पे x is greater than 1, ठीक है, x is greater than 1 and x is less than 2 मतलब हमें वेरिएबल इन बिटवीन 1 to 2 मिला। ओके, सो x should be in between 1 to 2, therefore function f of x is decreasing function। हमारा फंक्शन क्या था, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x plus 2 is decreasing function if and only if your variable x belongs to the interval 1 to 2। सो हमें इंटरवल क्या मिला, वैल्यू ऑफ x क्या मिली, इन बिटवीन द इंटरवल 1 to। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। शो दैट द फंक्शन f of x is equal to x माइनस कॉस एक्स दिया है हमें, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अभी हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है, इसका मतलब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि डेरिवेटिव हमें क्या प्रूव करना है, ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। तो ठीक है, फंक्शन जो दिया है उसका डेरिवेटिव फर्स्ट निकालना पड़ेगा, ये अगर हमें प्रूव करना है तो। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स हमें दिया है, सो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। ओके, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या मिलता है, 1 प्लस साइन एक्स मिलता है। अभी हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें ये पता है, नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है कि साइन एक्स जो फंक्शन होता है ये हमेशा इन बिटवीन -1 to +1 रहता है। ओके, इसके अलावा ये फंक्शन कहीं और वैल्यू दिखाता नहीं। सो साइन एक्स शुड बी इन बिटवीन -1 to +1 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अभी हमें फंक्शन क्या चाहिए, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम 1 ऐड कर लेते हैं। सो -1 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अगर हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा विच इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 1। हमें क्या प्रूव करना था कि जो डेरिवेटिव मिला वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स व्हाट, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। सो हमें फंक्शन क्या मिला, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और यही हमें प्रूव करना था for all the values of x। I hope you understand all these problems. These were very simple. When we have to prove that the function is increasing, that time just show derivative of that function is greater than 0, and when we have to prove that the function is decreasing, that time just show that the derivative of that function is less than 0 for the decreasing function. So
थैंक यू स्टूडेंट।